Hello students. So in the previous lecture we discussed about the two different interaction between the two biota or two different organisms. Okay, so now today we move to another two different interaction which are beneficial or harmful, that we will see. Okay, so first of all, the first interaction is commensalism. Now in the commensalism, I already gave you the example of commensalism in the previous lecture when I introduced the commensalism in front of you, that any one species that are beneficial with this interaction and the another species getting nothing. They are getting nothing because they are neutral. So they are not beneficial, they are not harmful from the other. Okay, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि either the interaction is positive or negative. So कभी भी ये इंटरेक्शन अगर हो कि आइदर कॉमेंसलिज्म हो तो कोई एक स्पीसीज वो न्यूट्रल होती है, सो उनको कोई बेनिफिट या फिर कोई लॉस नहीं है, देन द अदर वन गेट द बेनिफिट्स. Like there are so many examples of different animals that interactions. Okay, one by one we will see. Okay, the first one is mango tree and orchid. Now orchids have nothing, mango trees are well developed plants, but orchids have nothing, they devoid of the climbing parts, or they can't survive lonely, so they get the support of mango tree for the climbing. Okay, so orchids get the support from the mango tree for climbing. So इससे mango tree को कोई फर्क नहीं पड़ता कि orchid उनके ऊपर चढ़ रही है या orchid है, because mango tree से वो nutrition नहीं लेती. They just take support from mango tree, and orchids are beneficial कि जब वो mango tree के पास होती है. So यहाँ पे orchid को benefit है, but mango tree को कोई benefit या कोई loss नहीं है. That is commensalism. Okay, the another example is कि barnacles. We are already discussed about barnacles in the competition. Okay, but the barnacles are attached with the veil, the lower surface of whale. So barnacles are attached with the veils. Now you know कि whale are large aquatic mammals. They are large aquatic mammals, and they are so many big. They are so many big compared to small fishes and all. Okay, so whales have this so large body. So उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर बार्नेकल्स उनके साथ अटैच है, लाइक सबस्ट्रेट के जैसे ही रॉक के साथ अटैच है वैसे ही वो व्हेल के साथ अटैच रहते हैं. बट यहाँ पे इसको कोई बेनिफिट या लॉस नहीं है. बट barnacles get benefit with the attachment of whale, because they get the habitat, substrate. Second thing, by the movement of whale they get some foods also. Okay, so here the interaction is commensalism. Now the third one is grazing cattle and egret. Egret is a bird. Maybe you are aware with the egrets. ओके, बगुला जिसको बोलते हैं, egrets. नाउ ग्रेजिंग एनिमल्स हैं या कैटल्स हैं, वो कैसे होते हैं कि आफ्टर मॉनसून, जनरली ये आपने ऑब्जर्व किया ही होगा 100% कि आफ्टर मॉनसून द ग्रेजिंग एनिमल्स वो जब जा रहे होते हैं किसी ग्रास के पास या कोई प्लांट के पास, सो जब भी वो ग्रेजिंग करने के लिए जाते हैं, सो प्लांट मूव करता है और प्लांट पर जितने भी इंसेक्ट हैं, बीटल्स हैं, बी हैं, वो सभी बाहर निकलते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ दिस कैटल्स. ओके, सो वो जब बाहर निकलते हैं तो ईग्रेट उनको देख लेते हैं, और ईग्रेट कैन इजीली टेक दैट इंसेक्ट और दैट बीटल्स और बी जो उनको खाना है. ओके, सो ईग्रेट है वो इस मूवमेंट से जितने भी इंसेक्ट बाहर आते हैं उनको देख लेते हैं और उनको खा लेते हैं. लेकिन ग्रेजिंग एनिमल्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपनी धुन में चले जाते हैं, लेकिन उससे उनकी मूवमेंट से जो भी इंसेक्ट बाहर आता है वो इग्रेट खा सकता है. सो दैट इज द कॉमेंसलिज्म. इससे कैटल को कोई फायदा या नुकसान नहीं है. ओके, नाउ थर्ड, द सी एनीमोन एंड क्लोन फिश. नाउ लिसन केयरफुली कि सी एनीमोन दे कंटेन अ टीनोब्लास्ट और नीडोब्लास्ट. मीन्स इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दे कंटेन अ स्पाइंस.
Okay, not exactly spines but nidoblast or nidoblast. Nidoblast means they contain a spine like structure in their tentacles. Okay, so whenever the defense means they contain a defense mechanism, कि जब भी कोई प्रीडेटर्स या कोई ऐसा एनिमल जो उसको डैमेज करने के लिए आता हो, सो दे यूज द निडोब्लास्ट टू डिफेंड. ओके, सो नाउ इसका बेनिफिट क्या है कि जहाँ पे बहुत सारे सी एनिमोन्स हैं वहाँ पे क्लाउन फिश रहती है. ओके, क्लाउन फिश रहती है. सो सी एनिमोन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास कौन है, क्लाउन फिश रहती है, बट वो क्लाउन फिश को प्रोटेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, बिकॉज वो तो अपना नेचर नॉर्मल जो है निडोब्लास्ट वो तो अपना नेचर परफॉर्म करेंगे, बट क्लाउन फिश उनके नेचर से या उनके निडोब्लास्ट से हेल्प लेती है और सी एनिमल को कोई फर्क नहीं पड़ता. सो क्लाउन फिश है उनका खुद का प्रोटेक्शन हो जाता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉमेंसालिज्म. ओके, एंड दिस इज द इंटरेक्शन कि जिसमें एक को फायदा है और दूसरे को फायदा या नुकसान कुछ नहीं है. Okay, now the next interaction is mutualism. This is the very common interaction. Why? Because both the species get benefit by this interaction. Both the species are beneficial. Okay, so and the best example of this interaction is lichen, because I also gave this example in previous lectures कि lichens are the combination of fungi and algae. So fungi है वो कैसे बेनिफिट करती है, वो algae से फूड लेती है, बिकॉज algae फोटोसिंथेसिस करती है एंड फूड बनाती है. सो fungi क्या करती है, fungi absorb the atmospheric moisture or water and they give to the algae. Okay, so this is the beneficial interrelation beneficial relation. So lichen is the best example. Second thing, you had already learned into the 11th standard कि and the 11th chapter rather, हाँ 11th chapter की the gymnosperm plants are angiosperm plants कि जिनके रूट के अंदर the fungi are surviving. Okay, mycorrhiza. Okay, so some food materials, some minerals are absorbed by the help of fungi, mycorrhiza, and mycorrhiza get the habitat and food from the plants. Okay, second thing कि leguminous plants के अंदर क्या होता है कि rhizobium है वो सर्वाइव करता है the nitrogen fixation जो करता है, एंड नाइट्रोजन फिक्सेटिव जीन है उसके पास. सो दैट rhizobium that help to nitrogen fixation and rhizobium get the food and habitat from the plants. So these are the example of mutualism कि जिसके अंदर both the species get benefit. Okay, now the another interaction in the mutualism is कि animal and plants are correlate. एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कोरिलेट. जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको ये माइकोराइजा का एंड प्लांट का, सेम एज प्लांट और वो फंजाई हो गई, सेम एज प्लांट एंड एनिमल्स आर ऑल्सो रिलेटेड विथ ईच अदर एंड दे विल को इवॉल्व विथ ईच अदर विद द इंटरेक्शन ऑफ म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म के साथ दोनों हैं वो को इवॉल्व करते हैं, को इवॉल्व कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और अगर एक नहीं है तो दूसरा नहीं होगा, और दूसरा नहीं है तो पहला नहीं होगा. सो और दोनों अगर साथ में है तो वो एक साथ इवॉल्व करते हैं. अगर प्लांट में कोई चेंज आता है तो पैरेलली एनिमल भी अपने आप में थोड़ा चेंज करते हैं और को इवॉल्व होते हैं, आइदर फूड पर्पस, आइदर पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो हम अभी देखने वाले हैं. So pollination, food purpose, protection, sexual reproduction, ऐसे ही काफ़ी सारे examples हैं. So these are the co-evolution examples कि जो म्यूचुअलिज्म के अंदर है और वो co-evolve होते हैं. Okay, so they get benefit from each other. इसमें एक चीटिंग भी है, वो भी हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे चीट करके को इवॉल्व या फिर एक साथ रहते हैं, वो भी देखना है. ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल इज फिग ट्री एंड वास्प. ओके, फिग ट्री एंड वास्प. फिग ट्रीज के अंदर फिग ट्रीज पॉलिनेशन के लिए क्या यूज करती है फिग ट्रीज? वास्प यूज करते हैं. वास्प इज अ इंसेक्ट. ओके,
वास्प इज ए इंसेक्ट. सो वास्प है वो पॉलिनेशन करती है फिग ट्री का. कैसे? कि दे डिपेंड ऑन फिग ट्री. हाउ? सो दे ले देयर एग्स इनटू द फ्रूट ऑफ फिग ट्री. फिग ट्री का जो फ्रूट है, फिग, उनके ऊपर दे ले द एग, फ्रूट के अंदर एग रखती है. ओके, सो ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन फिग ट्री की जो पॉलन ग्रेन है वो वास्प के साथ अटैच होते हैं. वास्प जब दूसरे फिग ट्री पर जाता है तो पॉलिनेशन होता है. सो दिस इज द पॉलिनेशन. बट व्हाट अबाउट द वास्प बेनिफिट? सो वो एग ले करता है. नॉट ओनली द एग ले, सो उनके बाद जो लार्वास हैं या लार्वी है जो, ओके, दे लार्वा डिपेंड ऑन फ्रूट एंड सीड ऑफ फिग ट्री. So they are dependent on fruit and seed during the development. So larva जब डेवलप हो रहा होता है या एग से जब लार्वा बाहर आता है, so वो खाता है सीड को, फिग ट्री के सीड को खाता है for their development. So वास्प है उसको भी बेनिफिट मिलता है और फिग ट्री को भी बेनिफिट मिलता है. So this interactions are mutualism. ओके, एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन कि वो एक साथ इवॉल्व होते हैं. अगर फिग ट्री उनको हैबिटेट नहीं देगा, उनके एग को फूड नहीं देगा, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वास्प में भी चेंजेस आएंगे, बिकॉज दैट डेवलपमेंट इज डिपेंडेंट ऑन फिग ट्री. सी, that development is dependent on fig tree because larvas are feed on they feed the seeds of fig tree. ओके, सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन कि दोनों एक साथ इवॉल्व हो रही है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज एंड अनदर एग्जांपल विच इज यूनिक एग्जांपल. व्हाई आई एम सेइंग यूनिक? बिकॉज इट इज द चीटिंग. हाउ? आई विल से. ओके, सो ऑर्किड प्लांट, एज वी डिस्कस्ड हियर कि ऑर्किड्स आर depend on mango tree. Okay, so they support the mango, they supported on mango tree. Now orchid, what happened कि orchid की जो pollination process है which is done by honeybees or some beetles or some insect. Okay, wasp also. So generally the chief pollinators are honeybees. Now what happened? So orchid का जो flower है, flower of orchids, it is exactly resemble shape wise, color wise, it is exactly resemble of female honeybee. Okay, so it is exactly look like female honeybee. The flower or the petal structure of flower, petals rather, the petal structures of flower, okay, that all exact resemble of female honeybee. Now what happened? क्या होता है कि ये exact resemble है honeybee के. Okay, so male honeybee जो हैं, male, they start the reproduction with this female, but they start the reproduction with female honeybees. But जब वहाँ तक वो पहुँचते हैं and they start the copulation या pseudo copulation हम बोल सकते हैं, because that is not honeybee ना, that is the flower. बट ये फ्लावर कुछ ऐसा है कि जो हनीबी जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. सो मेल हनीबी है वो वहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए, कॉपुलेशन के लिए आता है, बट देन उसको पता चलता है कि ये तो फ्लावर है, ये हनीबी नहीं है. And between this interaction, the pollen grain of orchids are attached with the male honeybee. Now अब मेल honeybee है वो दूसरे फ्लावर पे जाती है कि उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पे the second female is there, so वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं और ऐसे ही वो प्रोड्यूस करती ट्रांसपोर्ट करती है पॉलन ग्रेन को. सो पॉलिनेशन हो जाता है ऑर्किड का और यहाँ पे उसका कॉपुलेशन हो रहा है. बट दिस इज द चीटिंग, यहाँ पे कॉपुलेशन नहीं हो रहा है. सो जस्ट सी द यूनिकनेस ऑफ नेचर कि दे प्रोड्यूसेस, मीन्स ऑर्किड प्रोड्यूसेस द फीमेल हनी बी, मीन्स नॉट एग्जैक्टली बट दे प्रोड्यूसेस द फ्लावर लाइक हनी बी. ओके, ये यूनिकनेस है. सो दोनों स्पीसीज एक साथ इवॉल्व करती है, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है. Okay, so these are the example of mutualism. Clear? So ये the last two interaction are here.
So here the chapter is completed after this whole examples. Okay, and these are the easy examples, and you should aware, or you have to remember this example for your MCQ and your further test and all. So clear? Okay, maybe there is no doubt regarding to these examples because they are very easy. Okay, so you have to read the textbook. तो यहाँ तक रखते हैं. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, बिकॉज यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है. ओके, बाय.